topic which this book is raising is that how we can use our culture as a creative commodity, and also how we can enhance promotion, because there are two very important aspects which book is talking about. One is the culture economy, another is the technological exploration, because uh, we are still not at, although we are a IT superpower, but still we are not using the technology in culture at the pace as all over the world people are doing it. We all know that cultural, it may be tangible culture, intangible culture, or like natural heritage or documentary heritage. All most of them exist in a certain form of media, and a media has certain life. After some time, what will happen? The life will be over, and we will be losing those kind of all important heritage, and that's why we need to create digital twins. Why digital twins? Because in future at least we can feel something similar, and today technology is totally competent enough to create digital twins of, like, there are various kind of project, like, talk about Humpy. There is a virtual reality and augmented reality. You can feel the Humpy as it was in that era. Like there's some kind of virtualization where priests are performing puja and people are sitting in that kind of costumes and attire when it was in that old time. You can create a heart or surrounding the temple. So those kind of, like, technology exploration is not done. Second very important is the promotion. Take example at IGNCA. From 1989 we have started microfilming of the manuscript. We have digitized almost 3 lakhs manuscript initially through microfilming, and now later National Mission for Manuscript came into being, and we have almost 5-6 lakhs manuscript. But to access those manuscripts, still people have to come to IGNCA. It has been not made available on internet, and the biggest problem in that, like one issue she has talked about IPR and copyright. As per my understanding, there is no copyright on traditional knowledge system, because all these are away from that 60 years after the death of author, and there is, in many cases there is no author. This heritage belongs to the humanities. Not these were created when there is hardly any boundaries, even state or country boundaries. So that's the another one aspect which this book is talking about. It's a UNESCO promotion, and like UNESCO has 3-4 programs for promotion of cultural heritage. Two of them I'm representing, like I'm the expert member of UNESCO Memory of the World International Advisory Committee to promote documentary heritage, in which this year we have nominated Srimad Bhagavad Gita, Sri Ramcharitmanas of Tulsidas, Panchatantra, and also Natya Shastra. Another is the on intangible cultural heritage, where Garva was nominated or inscribed this year. Similarly, there is a World Heritage where we have number of World Heritage monuments, and then also this decade from 2020 to 2032, UNESCO is celebrating as a decade of indigenous languages. So in that, she has also talked about the role of languages, because I strongly believe if we have to preserve cultural diversity, we have to preserve linguistic diversity, because all these ancient languages, Brahmi, Pali, Prakati, Nandi Nagari, Granth, Modi, Tiglari, if these long languages disappear, all this literature inscription become waste paper. Nobody able to read it. So if we have to preserve that those contents, we have to preserve these languages also. I remember there was an example in Karnataka when there was a case going against state versus some individuals. They were claiming that property or land belongs to them. And those land records were in the earlier script Modi, which was not, many people were not aware of that. And government was about to lose that case. But fortunately, there was some scholar who translated and helped in claiming that this was a government owned property since ages. So language has very, very important role. And she has also talked about a very good issue, which is the connecting this traditional knowledge system with modern science. Take example of healers. There are a lot of healing practices all over India. We have done some project at IGNC of
documentation of healing practices in Northeast state. I have personally visited some of these healers. They are so innovative, maybe born healer, touch healer, or meditator. All these forms of the medical healing practices, herbal healing practices, can be integrated with modern medical sciences. Like we have been teaching Ayurveda separately and modern medical science separately. Why we can't integrate both? A doctor should know when he is treating some person, what Ayurvedic treatment can help, because there are certain elements where Ayurvedic may be the much better. So that kind of integration, these healing practices not have been. So this and even when we talk about invention in new eras, these manuscripts, which are more than 1 crore, we have already documented 4.5 million, 45 lakhs manuscript here at IGNCA, which you can know which manuscript available in that. So all these important issues this book is talking about. It is starting a debate and discussion further to formulate a cultural policy, and I'm sure with blessings of eminent politician like Sri Satish ji, will definitely able to come out with some kind of cultural policy, which is very well required. ये बुक का लिखने का यही अवसर था, क्योंकि मैंने देखा है जो स्टेट गवर्नमेंट में मैं काम करती थी जो कलाकारों के साथ, फिर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, तो इसमें मैंने देखा हर बार कलाकार आके उनका स्थिति ऐसा हो गया कि वो पूछ रहे हैं हमें प्रोग्राम चाहिए, और थोड़े कलाकार, थोड़े नहीं, करीब 90% कलाकार, उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही दुखदायक है। तो इसको लेके क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना है। अब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इतना प्रसार का इतने मार्ग आ गए हैं, फिर भी ये क्यों सफ़र हो रहे हैं फाइनेंशियली? तो स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके अभी हमारे साथी हैं अभिनया जी, कुचिपुड़ी डांसर, तो ये लोग इतने सारे साल कृषि करके ये आर्ट फॉर्म को सीख रहे हैं, पर क्यों इनको आर्थिक तौर पे क्या हो रहा है? तो इस विषय को लेके बहुत सारे चीज़ है जो हम कल्चरल राइट्स है, फिर इसमें एंटरप्रीनियरशिप का कैसे कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने देखा है जो ये लोग स्क्रिप्ट करते हैं या डांस फॉर्म को एक कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, इसको कुछ कॉपीराइट है ही नहीं आज तक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये लोग ऑनलाइन अपलोड करने में भी बहुत डरते हैं कि ये कोई कॉपी कर ले। तो इसका क्या सॉल्यूशन दिखा सकता है आज के टेक्नोलॉजी में? तो ये एक विषय है। और एक पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स को लेके अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया, और कितने लोग कॉपी कर सकते हैं ऐसा पेंटिंग, तो एआई टेक्नोलॉजी हमको हेल्प कर सकता है। और मैंने देखा आज के बच्चे सिर्फ चैट जीपीटी में ऐसा डाल रहे हैं, मीन्स कुछ भी असाइनमेंट हो उसमें डाल रहे हैं कि दिस इज़ द असाइनमेंट, उसका लिख के दे दो। तो एआई बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो क्यों गलत दे रहा है? इसमें डिजिटल कंटेंट है ही नहीं, तो डिजिटल कंटेंट कौन भरना है? तो जो इसका ज्ञान है वही भर सकते हैं, देन हमारे आगे जनरेशन को सही इन्फॉर्मेशन जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे जो सवाल मैंने उठाया है, इसको लेके एक इनोवेटिव सॉल्यूशन और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में बदल सकते हैं। तो इसी को लेके एलएमएस प्लेटफॉर्म में हम ट्रेन करेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड है आर्ट रिलेटेड फील्ड, ये नहीं है कि वो कलाकार होके ही आना है, जो टेक्नोलॉजी साइड है या अर्थशास्त्र से है, मीन्स जो भी फील्ड से है, जैसे कि कुछ एग्जीबिशन चलना है तो उसके लिए कारपेंट्री की भी ज़रूरत होती है, पेंटर की भी ज़रूरत होती है, और डिज़ाइनर की भी, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइनर है। तो हर एक फील्ड की ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। तो इसको लेके ये एक पहला सीरीज़ में एक बुक समझना है, तो आगे लेके बहुत सारा डेटा के साथ मैं दूसरा बुक भी उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। तो आप ज़रूर पढ़ना है ये बुक, और
आपका कुछ फीडबैक है तो वो बहुत ही ज़रूरी है मुझे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। तो आप मेल भी कर सकते हैं, आपके फीडबैक के लिए वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। I'd like to start with quoting famous artist Pablo Picasso. We have all heard of Picasso. Financial literacy is the unseen brushstroke in the masterpiece of artistic expression, guiding the colors of creativity towards a canvas of sustainable success. So 73, April 1973, when Picasso breathed his last 50 years ago, I'm just assuming even if he made this statement 50 years ago, he recognized the importance of financial literacy then. So it's not just creativity, it is also the financial literacy which has to be amalgamated with the creative bent of mind for the art entrepreneurs to be a successful venture. So we need creativity, and the artist can either have his own creative ventures, or that can be on a higher basis, on some friends' request, anything of that sort. But then there has to be a blend of economics and art and entrepreneurship for the successful ventures to be there. More recently, Oprah Winfrey has also said, finance is the oxygen for creativity, fueling the flames of innovation and breathing life into the world of art and culture. So all these famous artists, as long as 50 years ago, have also recognized that yes, financial management, financial literacy is very important for your art ventures to be successful. This, as Harsha ji has announced, is the essence of her book. The need to be creative, that's great, but alongside, one needs to have the financial literacy, business management skills, risk-taking abilities, and the knowledge of the IPR regime and the copyright regime that she has talked about. Then only can their art be made a profitable venture. As she mentions the title of her chapter 2, which is Cash Cow, a milking cow. The art can be made a cash cow or the milking cow only once you have the financial understanding, financial literacy, and the backing of the know-how to make that art a financially profitable venture. Talking about the facts and figures, the global art market in 2023 was about $579.52 billion, and there is no limits to this growth. To quote from Dr. Harsha's book only, nearer home she talks about India statistics, the art sector is experiencing in India a very rapid growth with a value of over $21 billion and employing over 40 million people. This sector is growing at a rate of 12% and is expected to reach a value of $40 billion by 2025. That is what I'm quoting from exactly Dr. Harsha's books only. So जब हम मोदी जी की बात करते हैं 2025 का जब भी डिस्क्रिप्शन आता है आपके दिमाग में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आती है। मोदी जी का सपना विकसित भारत से पहले जब उन्होंने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, तो आपके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर विच द फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड अ बुक देयरफॉर बिकम्स important. So the pertinent question comes, how to blend these two, economics and art. This blending is very important. Ma'am has talked about various startups, various financial understanding of things, entrepreneurship. She has even talked about crowdfunding and various other things. But I would just like to go a step forward, or maybe I should say a step backward, because the basics of that is your understanding of the financial part, or financial literacy as you may call it. So ma'am is very rightly launching this course which needs to give the artist a perspective of the financial understanding as well. तो मैं इसको इस तरीके से इज़ हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट, वित्तीय ज्ञान से विकसित भारत। आप विकसित भारत की तरफ अगर अग्रसर होंगे तो वो वित्तीय ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, विच इज़ द सेंसिटिव टॉपिक एंड द वेरी पर्टिनेंट टॉपिक विच मैम हैज़ टॉक्ड अबाउट। इसको मैं 4 ट्रेड्स के थ्रू बड़े ब्रीफली कुछ स्टोरीज के थ्रू, बिकॉज आई एम नॉट, दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेक्चर दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ, क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं मेरे बीच में, तो मैं इसको 4 स्टोरीज के थ्रू मेजर ट्रेड्स के बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या वो 4 ट्रेड्स हैं जिसके तहत आप विकसित भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू आप बढ़ सकते हैं। परसिवियरेंस, पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप प्लान। कभी भी आप एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स को ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। परसिवेरेंस या हार्ड वर्क, पेशेंस, जेस्टेशन पीरियड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर प्लान नहीं काम करे तो कैसे उसको हमने करना है, और एक बैकअप प्लान, स्टेपनी हमारी गाड़ी में, हमारे स्कूटर में भी होती है। तो मैं इन चारों को बहुत छोटे छोटे कहानियों के थ्रू आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगी।
परसिवरेंस एंड हार्डवर्क, अभी मैंने चैप्टर 2 मैम का कोट किया, आपने कहा कैशिंग काउ, मिल्किंग काउ। मैं इसको आपके सामने ऐसे कहूँगी, काउज डोंट गिव मिल्क। सुन के अचंभा लगेगा, काउज डोंट गिव मिल्क। येस, आई स्टैंड बाय इट, cows don't give milk. We have to make the cows to give that milk. We have to milk the cows to get that milk. गेटिंग अ काउ सिंपली कि आप वहाँ बैठे हैं, आपके लिए कोई सिस्टम होगा जो आपके लिए काम करेगा। सर ने बहुत मैक्रो सेंस में बात करी, रमेश सर ने मैक्रो सेंस में बात करी। येस, वी नीड द पॉलिसीज़, बट मैं यहाँ पे माइक्रो सेंस में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठ के जाना होता है, काउडंग में अपने पाँव रखने होते हैं, स्टूल पे पेशेंटली बैठना होता है, तब जाके आपको कहीं 2-3 बाल्टी, आपको काउ मिल्क नहीं देती है, आपको उस दुधारू गाय से दूध निकालना पड़ता है। That is what we have to make the artists understand, that it is not that I wish, I think मैं बहुत ग्रेट हूँ अपने काम में तो मेरा काम तो चल जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। You have to work hard, perseverance is important। आपको अपना एक फोकस एरिया बनाना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी दुधारू गाय आपको दूध देगी। हमारे संस्कृत श्लोकों में भी कहा गया है, उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। आपने सोच लिया, सोते हुए शेर के मुंह में भी हिरण अपने आप नहीं घुसता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। दैट वॉज द फर्स्ट ट्रेट। सेकेंड ट्रेट इज़ पेशेंस। मैं इसको भी एक स्टोरी के तहत सुनाऊंगी। प्रोफेसर माइकल वॉल्टर की मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, काफ़ियों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना, टॉफ़ी एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दैट एक्सपेरिमेंट वॉज व्हाट प्रोफेसर वॉल्टर टॉक्ड अबाउट वॉज, उन्होंने पूरी क्लास में बच्चों को एक मार्शमेलो दिया। उन्होंने कहा या तो आप इसको खा लें, लेकिन अगर आपने नहीं खाया, मैं 15 मिनट के बाद क्लास में फिर आऊँगा, नोबडी इज़ देयर टू मॉनिटर यू, दैट इज़ व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, कि मैं 15 मिनट बाद फिर क्लास में आऊँगा। अगर आपने वो मार्शमेलो नहीं खाया हुआ तो मैं आपको एक और मार्शमेलो दूंगा उसके बदले में। दिस इज़ व्हाट वाज डिलेड ग्रेटिफिकेशन इन प्रोफेसर वॉल्टर्स वर्ड्स, और इसको हम इकोनॉमिक सेंस में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। आज मैंने बिजनेस लगाया तो इमीडिएटली वो अगले दिन मुझे रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कब ब्रेक इवन होगा, कब उसका प्रॉफिटेबल वेंचर आएगा। सो एंड देन प्रोफेसर मार्शमेलो's एक्सपेरिमेंट वाज दैट जो बच्चे उस टॉफ़ी को नहीं खाए, द वंस हु डिड नॉट कंज्यूम दैट टॉफ़ी, द वंस हु शोड द पेशेंस, वर द चिल्ड्रन हु लेटर ऑन बिकेम वेरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स इन वट एवर फील्ड दे चोज। तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। बीइंग क्रिएटिव, बीइंग very good artist is all right, but 1 you need hard work, 2 you need patience. Again संस्कृत में हमारे श्लोक कहते हैं, न धैर्येण विना लक्ष्मी, न शौर्येण विना जय, न ज्ञानेन बिना मोक्ष, न दानेन बिना यश। आपको धैर्य के बिना लक्ष्मी यानी अर्थ यानी मनी नहीं मिलेगा, शौर्य के बिना आपको विजय नहीं मिलेगी, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, और दान के बिना, चैरिटी के बिना आपको यश और फेम की प्राप्ति नहीं है। तो आपको धैर्य लक्ष्मी के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आई टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में मैं अगेन एक स्टोरी के थ्रू कहूँगी। एक बच्चा अपनी मदर के साथ जा रहा था। फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने आज एक प्लान सोच लिया, ज़रूरी नहीं है, लाइक सर टॉक्ड अबाउट, मैक्रो सेंस में इतने ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इतने सारे आपको रोड ब्लॉक्स मिलेंगे, आपको ये नहीं है मैंने सोच लिया तो यही काम ऐसे ही रास्ते पे चलना है। बच्चा अपनी मम्मी के साथ जा रहा था, एंड वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द गूगल मैप्स। अगर हमने एक रूट चुन लिया और वहाँ पे कोई रोड ब्लॉक आ गया, तो क्या गूगल लेडी कहती है घर जाओ, वापस जाओ, मैं रास्ता नहीं दिखा सकती? वो क्या करती है, इमीडिएटली ऑल्टरनेटिव रूट बताती है और आप उस ऑल्टरनेटिव रूट पे चल पड़ते हो। दैट इज़ वॉट द चाइल्ड टोल्ड हिज मॉम कि मम्मा हम अपनी लाइफ में ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं ला सकते? हमने क्यों सोच लिया कि एक तरीके से काम होना है तो वो उसी तरीके से काम होना है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेसेस टू फ्लरिश टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। येस, यू हैव थॉट ऑफ अ प्लान, बट इफ दैट रोड ब्लॉक इज मेट, please think of the Google lady. She doesn't scream at you, she doesn't yell at you, she doesn't get frustrated, go back home, you can't reach your destination. She says rerouting your way to the destination. So simply and सहजता के साथ आप अपने रास्ते को रीरूट करें, आपको टारगेट पता है, उसकी तरफ आप अपने प्लान पे अग्रसर हों। क्योंकि फिर से वही संस्कृत के श्लोक को कहूँगी, न ही किंचित विज्ञानति
किम कस्य स्वो भविष्यति, किसी को नहीं पता भविष्य क्या होगा, तो अपने आप को रीरूट करने का फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है. एंड लास्टली, हैव अ बैकअप प्लान. इसमें मैं 3 दिन पहले का ही अपना एक एग्जाम्पल दूंगी. माई सन इज़ इन क्लास 7th. उन लोग का एक एनुअल डे फंक्शन हो रहा था. एनुअल डे फंक्शन में एवरीबडी इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स की बात हो रही थी. धारा से धरोहर तक वॉज द थीम. एंड हर बच्चे का अलग अलग था. कहीं वहाँ पे कोई लाइव किचन कर रहा था, कोई इंडियन ट्रेडिशंस दिखा रहा था, रोल प्ले था, एक्टिंग थी. एंड देन ही केम बैक एंड टोल्ड मी कि मम्मा पता है हमारी टीचर कितनी स्मार्ट है. जो बच्चा मेदू वड़ा लाना था ना, तमिलनाडु की थीम थी उसकी, जो बच्चे ने मेदू वड़ा लाना था वो तो एब्सेंट ही हो गया. तो पता है मैम ने क्या किया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया. नाउ द वे चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट, थिंक अबाउट इट, द एज ऑडियंस आई डू नॉट नो, द चीफ गेस्ट डज नॉट नो, लेकिन टीचर सॉरी फेस नहीं कट कर सकती थी कि मेरा जी बच्चा एब्सेंट हो गया तो मेदू वड़ा नहीं है, सांबर सांबर खा लीजिए, चटनी चटनी खा लीजिए. ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि ये नहीं काम किया तो मुझे क्या करना है. दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस. फाइन, आपका पैसा लगेगा, हो सकता है पैसा लगे, चीज़ें लगें, फ्लेक्सिबिलिटी, तभी वो पहले के तीनों ट्रेड काम आते हैं. हमेशा एक बैकअप प्लान रखिए. आपको नहीं पता, आप सामने सॉरी फिगर नहीं कट कर सकते. आज मैं नोट्स प्रिपेयर करके लाई हूँ कि क्या मुझे बोलना है. मैंने अगर गलत बोल दिया, आपको नहीं पता है, मुझे पता है मैं गलत कर गई. ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस, ऑलवेज नो दैट माई प्लान इफ डज नॉट वर्क, आई हैव अ प्लान बी एंड द ऑडियंस विल नॉट come to know what my plan A was and that has failed. Always have that confidence to reach that plan. फिर just before concluding मैं एक आधी सक्सेस स्टोरीज़ की बात करूँगी. वी हैव अ वेरी फेमस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, अमांडा पाल्मर की स्टोरी है. अमांडा पाल्मर 2000 में उसने अपना करियर शुरू किया था. शी इज़ एन अमेरिकन आर्टिस्ट. लेकिन 2012 में इज़ व्हेन शी गॉट दी सक्सेस. उन्होंने, जैसे मैम ने क्राउड फंडिंग की बात करी, शी वॉज द फर्स्ट वन इन फैक्ट एज एन आर्टिस्ट. शी स्टार्टेड द आइडिया ऑफ क्राउड फंडिंग एंड यू विल नॉट बिलीव 2012 में थिएटर इज़ इविल वॉज हर ग्राउंड ब्रेकिंग म्यूजिक एल्बम. उन्होंने प्रोजेक्ट में कितना, आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट हियर, 24,883 backers is what she got for her crowdfunding venture, and she amassed almost $1.2 million. फर्स्ट एवर क्राउड फंडिंग से $1.2 मिलियन, $1 मिलियन की फिगर को क्रॉस किया था. तो आप घर बैठे सोचते रहे कौन करेगा, क्या करेगा, आप जाके तो देखें. यू नेवर नो कौन करेगा. यू हैव टू रीच आउट टू द ऑडियंस, यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर टेक्निक शी यूज्ड कि पैसा बचाना है. शी सेड कि and that is where she used the technology. She blogged it, she created her blog. She said, I'm asking for semi-professional local musicians to volunteer for a couple of my songs and for my band. For what? Exposure, fun, beer and hugs instead of money. उन्होंने कहा कि मैं सेमी प्रोफेशनल को ले लेती हूँ, मुझे तो आता है ना, तो आप अपने साथ उनको आप स्पेस दे रहे हो. शी सेड एक्सपोजर, फन, बियर एंड हग्स. अमेरिका में थी तो बियर बोल सकती थी. आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दैट, बट आई वाज जस्ट कोटिंग हर. तो शी सिंग पैसा बचाना है. आप किसी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कि आपको कैसे करना है. क्लोजर होम हमारे इंडिया के ही हम अगर लें, प्रशांत सिंह का, आई एम सॉरी अगर मैं बहुत लंबा तो नहीं जा रही, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट, हाथ का बना वेंचर है. हमारे कश्मीर बॉक्स कश्मीर ओरिजिन का है. हमें इन सब का सक्सेस स्टोरीज देखकर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए. फेलियर स्टोरीज़ भी बहुत हैं. फेलियर स्टोरीज़ इसीलिए कि आपने समय के साथ रह के फाइनेंशियल लिटरेसी को एम्ब्रेस नहीं किया. तो कंक्लूड करने के लिए, एज द टाइम इज़ शॉर्ट, मैं फिर यही बोलना चाहूँगी कि आपका क्रिएटिविटी होना, आर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है. आई एम वेरी हैप्पी दैट मैम इज़ लॉन्चिंग दैट फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम टू ब्लेंड कल्चर. आई वुड रिक्वेस्ट सर टू लॉन्च मच मोर प्रोग्राम्स विद IGNCA ताकि हम विद्या से विकास की ओर बढ़ें. टू कंक्लूड, मैं फिर से संस्कृत श्लोक कोट करूँगी. न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम. ना चोर हर सकते हैं, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है, ना मेरे कंधे पे बोझ बढ़ाता है. विद्या जितनी बढ़ेगी उतनी ही वो सर्वधन है. तो फाइनेंशियल विद्या से ही विकसित भारत का की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं. Culture is much celebrated. People speak very flatteringly, very gloriously. At the same time, say the soft power resorts when it comes to budgetary cuts and all is the soft target. Say anybody needs to say कुछ
पैसे घटाना है. So find, this cultural allocations, this is easy. Actually, culture is what we are. Unless and until we realize what we are and we gain confidence, say culture is adaptation of over generations, of the society to our geographic environment, what we speak, what we wear, and what we create, how beautifully we live, and how we conduct among ourselves. These great concepts of Vasudhaiva Kutumbakam, that itself gives us, the Indian culture and civilization places on a very high pedestal. If not Vishwaguru, certainly we are Vishwamitra. We don't have animosity towards anybody. And Mahatma Gandhi famously said, and today if you visit Mexico City, Central Park, on high pedestal it is placed, Mahatma Gandhi's quote, the mission of Indian freedom struggle is to be friends with the world. That's what Honorable Prime Minister also is saying, that we are Vishwamitra, we are here to add value, we are here to find solutions. That's what Indian culture, Indian civilization is. We are truly in Amrit Kal, so to say, the Renaissance time, that by the 100th anniversary of our independence, 2047, we all are striving to be Vikasit Bharat, and in that direction, culture has a great role and contribution to make. We cannot afford to neglect. When I went to ICCR, DG ICCR, and Ambassador Lalit Mansingh ji was earlier DG, and he was at that time Vice President of ICCR. So he said, आपको यहाँ आना कैसा हुआ है, because you speak Japanese and you're doing East Asia and all this, you've been ambassador and all. So I said, इसमें क्या है? So he said, before him, only ladies were sent as DG ICCR. So culture आपकी बात है, आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लो, आप कर लो, this kind of a thing. No, actually there is so much to do. Simply put, the creative persons, whether it is visual art, performing art, or heritage artists, architects, they're very sensitive people. They need to be understood, appreciated, celebrated. Unfortunately, bureaucracy is very dry, cut and dry, and आप सबको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा. That's the general, rules and all these things, without understanding, what it takes for an artist to create. So this needs not only a bright officer, but also a person with the empathy and heart. So we should understand and also deploy the right resource, both financial and also the personal resource. I heartily congratulate Harsh Bhargavi that she's flagging our attention to the need to pay attention to the convergence of art, culture, and entrepreneurship and technology. Say today we are also a startup capital of the world. So many startups are coming. Here is a great opportunity. Indian culture is so undersold. Say, I'll give you an example. As an young probationer, I went to Japan. I used to travel, take out weekend, my car, and with family we travel. Say, we listed, what all the best places to visit. If you see, at the end of 2-3, what we realized is, say, what is the attraction that we went to? First attraction is the road is very good. So convenient to travel and reach the place. It is important, Number 2, say when you go there, you can park your vehicle. Number 3, toilets are very good, sparkling, Number 4, there is a cafeteria. Number 5, there is souvenir shop. Then, howsoever piddly little, small, insignificant, doesn't matter, the attraction, the heritage monument, people are lining up, the whole roads are full, over the weekend. But look at our position. We have any number of dozens of World Heritage Monuments. World Heritage Monuments are also listed by a little political game. We need to bring it to the notice of UNESCO and all. We're doing very well now. But the fact is we have several dozens of them. Recently we got in Telangana state Ramappa temple.
all the people, we went, visited, congratulated. People are very happy now that, Kismat Kulya, suddenly there will be droves of tourists. No, again, we need to do our infrastructure development, make it easy to travel and visit. In fact, we are planning to take ambassadors, a group of all ambassadors resident in India, so that, we can take them through them to spread the word. So it's still, you need to take them over road, long journey. So these bottlenecks and infrastructure challenges we need to understand, and patiently, as Madam has rightly said, there's no escaping the hard work. We need to have attention to detail. So simply we have cow, it doesn't give milk. We need to do what, say, when I joined 4 decades ago, Life Insurance Corporation, a very inspiring marketing manager came. He said, he gave his own example. He took his young daughter to Kolar, Karnataka, gold mine. So children are very, excitable, they very bubbly. So as they were approaching Kolar, she was shouting, crying, where is gold? Where is gold? Even if you go to Kolar, you need to dig deeper and process. There is no gold, readily available, sprouting and ready to pick up. And you have given beautiful stories and inspiring tales. So let me also add one. I had the occasion to serve on the other end of the world, Trinidad and Tobago. Very difficult to find on the world map. But this 160, 170 years ago, many Indians, Girmitiya, Jahaji, they visited, they went there, they were taken, and they have made Trinidad home and survived and prospered. There, in the 1940s, 1950s, someone wanted to make a Hindu temple. So that time it was English colony, and they said there is no land to construct a Hindu temple, because only Christianity is the religion, and all others are pagan religions, and there is no need to allot land for construction of temple. So this gentleman called Sivanarayan, he was like not to be depressed, not to be discouraged. So he said, if you don't have land on the island, I'll construct the temple in the sea. How could you construct a temple in the sea? Is it possible? Kabhi suna hai? So he was, the faith. Man mein hai Vishwas, pura hai Vishwas. So he had the faith, and nobody believed, nobody joined him. But he would every morning get up and take his bicycle and 2 buckets and go and fill sand in those buckets and, create a corridor, from where the land ends into the ocean. And lo and behold, finally he did create a temple by the sea. As you visit Trinidad today, it is called Sivanarayan Temple by the Sea. And not only once, then it got washed away by hurricane. Then second time, the whole township, whole village, whole society has joined the process of reconstruction. But the important thing is that we should have the faith. Basically, culture is what gives us that faith as a nation, as a civilization. So in fact, when I first went to Japan 3 decades ago, that time Japanese used to honestly look down upon us, that because, culture, civilization hardly matters, how glorious your literature, how great your values are. People see what you are, how rich you are, everybody flocks around rich people. So Japanese used to look down upon us, and I used to ask our ambassador, I said, we need to become economically prosperous. So today, as we are taking off as an economy, now also it is time that we understand culture has a great role to play in accelerating that takeoff and blooming of Indian economy, to take India its rightful place in the society. Because we do have the good privilege of leader Dr. Satish ji, I would leave the request that please do convey this to the leaders and policy makers. There is great improvement, but still we need to allot resource and also grant political attention for the work of culture. There is so much to do. 1000 से ज़्यादा वर्ष हम लोग पराधीन रहे, आक्रांताओं के हाथ में देश रहा। अलग अलग प्रकार से उनके साथ संघर्ष करने की अपने समाज ने कोशिश की, कभी जीते कभी हारे।
लेकिन बाद का आखिरी आक्रमण जो था, जिसको मैं यूरोपियन इन्वेजन कहूँगा, वो बहुत क्रूएल था। और जाते समय जिन्होंने अपने फुटप्रिंट्स अपने यहाँ के समाज के दिल और दिमाग पर छोड़ के गए, जिसका आज भी हमको अनुभव आता है, और इसलिए उसका पेनिट्रेशन डीप था। वो आक्रमण का स्वरूप भी अलग था। तो ये 1000-1200 साल के पराधीनता में कुछ कैजुअलिटीज़ हुई। नटशेल में 2-3 बातें बताता हूँ। पहली तो कैजुअलिटी हुई कि आत्मविस्मृति हो गई कि भाई हम क्या थे। इस आत्मविस्मृति के कारण, ग्लानि के कारण, उसका नेचुरल फॉलोआउट हुआ कि नेशनल प्राइड जिसको कहते हैं, आत्मगौरव की स्थिति, वो समाप्त हो गई। एज इफ आत्मगौरव करने लायक कुछ बात हमारे पास है नहीं। उसका परिणाम हुआ कि आत्मविश्वास समाप्त हुआ। माननीय मोदी जी ने ये पैंडेमिक के बीच में एक भाषण में आत्मनिर्भर भारत की बात की। ऐसे जब अनाउंस भाषण में कुछ शब्द आते तो स्वाभाविक है, लोगों को लगता है कि एक ऐसे ही कहा होगा भाषण के बीच में, लेकिन वो उस प्रकार से कहा नहीं था। बहुत सोच समझ के उन्होंने उस शब्द का उपयोग किया, और आज हम रियलाइज़ करते हैं कि उसके इर्द गिर्द हमारी सोच बदली है। तो जैसा मैंने कहा कि आक्रमणों के परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास समाप्त तो हुआ इसके कारण, और वो हैंगओवर आज भी दिखता है। अभी 75 वर्ष हो गए स्वाधीनता को, अमृतकाल शुरू हुआ, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य था, स्वाधीनता उसका एक पड़ाव था। इंडिपेंडेंस एक पड़ाव है, लेकिन स्वतंत्रता की दृष्टि से प्रयत्न जारी रखने चाहिए, आज भी चल रहे हैं, और अधिक गति से होने चाहिए। और इसी कारण जो कॉलोनियल हैंगओवर है, उसमें से पूरे दृष्टि से हम उभर कर बाहर नहीं आए। इसलिए हमारा भारत का परिचय तो शस्त्रों के आधार पर कभी नहीं हुआ, ज्ञान के आधार पर हुआ। अच्छा, ये जो बाहर लोग जाते नहीं थे, ऐसा नहीं था, बहुत जाते थे, सदियों से गए, बसे, तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में आदान प्रदान किया, अपने फुटप्रिंट्स वहाँ छोड़े, बरसों तक है, आज भी जीवित है लक्षण। मज़हब से मुस्लिम देश है, लेकिन कल्चर से वो सारी बातों को याद करते हैं, प्रभु राम को याद करते हैं, बाकी सारी बातों को याद करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात हुई कि आज इतने गंभीरता से इस विषय को फिर से सोचने की आवश्यकता पड़ी? और उसका कारण ये है कि ये जो यूरोप का आक्रमण था, उसमें से एक बौद्धिक दास्यता भी छोड़ के गए। आज भी ऐसे लोग हैं कि ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, काशी के कॉरिडोर पर इतना खर्चा हो रहा है, इसकी आवश्यकता है क्या? राम मंदिर के बारे में भी कहते, अलग अलग ऐसी जब भी बात आती है लोग कहते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो वैचारिक विचार की स्वतंत्रता पहले से है, लेकिन सोचने का ये विषय हमारे लिए कि क्या हम उज्जैन में महाकाल का सौंदर्यीकरण करने के बाद उज्जैन में आर्थिक विकास कितना हुआ है, उज्जैन के और मध्य प्रदेश सरकार की दृष्टि से सोचा तो काशी के कॉरिडोर पर हो सकता है 350-400 करोड़ रुपए का कुछ खर्चा था, लेकिन आज की काशी में जाने वाले लोगों की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से, तो इकोनॉमी में कितना परिवर्तन आया है, आर्थिक आय में कितना परिवर्तन आया है, ये इसके आंकड़े भी प्रकाशित हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी सोच ही ऐसी हुई है कि क्योंकि उसका परिणाम वो बौद्धिक दास्यता में है। बात कल्चर की कोई बात करता है और कल्चर को इकोनॉमी से जोड़ने की बात करता है, तो वो और दकियानुसी है, आउटडेटेड है, ऐसा कहेंगे उसको। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें दम है क्या कुछ? इन बातों को आर्थिक नीतियों से जोड़ने का क्या कारण है? और हम्पी का आपने उदाहरण दिया, हम्पी ने बहुत बातों का उस समय
विजयनगर साम्राज्य ने बहुत बातों की रक्षा की, नहीं तो वेदों से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जिसका एक्सेस नहीं होता। और आज कोई अगर वो हेरिटेज सेंटर उसके विकास के लिए कुछ करने की बात करेंगे तो अपने ही लोग, अपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, बाकी लोग, कुछ लोग आ जाएंगे, पत्रकार आ जाएंगे, वितंड एक वाद निर्माण करेंगे कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटी, आवर प्रायोरिटीज इज़ टू कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हो रहे हैं, ऐसी थोड़ी बात है। एकांगी विकास थोड़ी हो रहा है, समग्रता से विकास हो रहा है। अपने यहाँ आदत कैसे लगी है कि कोई सरकार बनी तो प्रश्न पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटी उद्योग है या कृषि है, तो मतलब यू हैव टू चूज़ वन। आप दोनों का समग्रता से विकास नहीं कर सकते। मोदी जी की खूबी, विशेषता यही है कि गांव भी आत्मनिर्भर हो, अच्छे हो, और स्मार्ट सिटीज़ भी हो, कृषि का भी विकास हो, कृषि की किसानों की आमदनी बढ़े, और मंडी तक का कनेक्शन, उसमें डिजिटलाइजेशन, किसान रेल, सब बातें। क्योंकि आइसोलेशन में केवल एग्रीकल्चर नहीं होता है, 25 बातों से जुड़ी हुई बात है। लेकिन अपने यहाँ सोचने की वो आदत नहीं रहेगी, क्योंकि जो आईना है या जो चश्मा हम पहनते हैं वो चश्मे विदेशी है, तो उसी नज़र से हम देखते हैं कि जो उन्होंने हमको सिखाया। और इस दृष्टि से हर्षा जी ने जो विषय किताब में छेड़ा है, एक दृष्टि से लिखा है, और उनकी दूसरी किताब भी आ रही है, ऐसा कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि इस विषय की भी चर्चा होनी चाहिए। गौर साहब ने कहा कल्चरल पॉलिसी वगैरह की बात बिल्कुल सही है। ऐसे अनेक विषय है कि आप जैसे लोग जो इस विषय के साथ जुड़े हैं, उन्होंने थोड़ा इसका क्राउड सोर्सिंग भी करना चाहिए। देश विदेश में आप इसके विषय से जुड़े हुए लोगों के राय क्या है, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, एंड वी कैन कम आउट विथ ए डॉक्यूमेंट कि जिसके ऊपर एक नेशनल डिबेट हो। जैसे डिबेट इन द सेंस कोई दो पक्ष होने चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन उसमें मंथन हो। जैसे शिक्षा नीति के बारे में 6 साल एक एक्सरसाइज चला नीचे से ऊपर तक, और उसका परिणाम ये हुआ कि, और शिक्षा नीति में ही इस बात को महत्व दिया है। लेकिन इस बात को महत्व देना यानी ग्लोबलाइजेशन से दूर भागना, यानी बैकवर्ड जर्नी है, यही हमको सिखाया गया ना। तो उसी पैरामीटर्स पर, उसी शब्दावली के इतने शिकार हो गए हम कि कोई मंदिर की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई कहता है कि जनजाति, उनको तो प्रिमिटिव कह दिया अंग्रेज़ों ने, उनको तो क्रिमिनल्स कह दिया, तो हम भी मानने लगे कि वो प्रिमिटिव है। वो सबसे सुसंस्कृत धारा उनकी है जीवन की। जो जनजाति स्वयं के बारे में सोचता नहीं है, उसका थिंकिंग में ही कम्युनिटी फीलिंग है, सबकी बात है, सर्वे संतु निरामय की बात है। लेकिन उस जनजाति को हमने क्रिमिनल कर दिया, उसको प्रिमिटिव कर दिया। क्यों? उनकी किताबों में लिखा था। और उनका यहाँ आना कब हुआ, उन्होंने कितना देखा, कितना समझा। लेकिन ये बौद्धिक दास्यता के अंश ऐसे रहे हैं कि अपनी ही बातों को हम ठीक से समझ नहीं पाए। इसलिए ये जो अमृत काल है 25 वर्ष का, उसमें तो ये भी साइमल्टेनियसली अपने को करना पड़ेगा। स्वाधीन देश में, स्वतंत्र देश में शिक्षा नीति बनने के लिए भी कितना समय लगा और कितना एक एक्सरसाइज करना पड़ा। और 6 साल के एक्सरसाइज से एक मंथन होकर, नहीं तो हमारी मान्यता क्या है कि अंग्रेज़ी में ही शिक्षा हो सकती है, हिंदी में कैसे MBBS की पढ़ाई हो सकती है। आज 14 भाषाओं में जब अनुवाद हुआ टेक्निकल एजुकेशन का, बाकी समाज में करते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो जो जाते जाते फुटप्रिंट्स छोड़ के गए हैं हमारे और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर, इतना असर है उसका। तो तुरंत बहस छिड़ती है तो दूसरा ग्रुप हो जाता है, वो कहता है कि व्हाट इज़ आवर प्रायोरिटी, दिस इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी, बस। तो 10 लोग उनके पीछे चले जाते हैं। सोचना यह है कि समाज के सामने जो कुल परिस्थिति है उसमें क्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि भाई देखिए, विच इज़ कमिंग फ्रॉम एलियन कंट्रीज, विच इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट, जो बाहर से आता है, मे बी टेक्नोलॉजी, मे बी थॉट प्रोसेस, एनीथिंग, उसको आप देशानुकूल करिए। जो अच्छा है वो लीजिए, विच इज़ नीडेड फॉर द कंट्री, बाकी छोड़ दीजिए। जो अपना है, विच इज़ बेस्ड ऑन नेटिव जीनियस, उसको आप युगानुकूल करिए।
हमने योगा को योगानुकूल किया, हमने आयुर्वेद को बाहर लेके गए। मदर अर्थ की कंसेप्ट क्लाइमेट चेंज के सेमिनार्स में और सम्मेलनों में चर्चा नहीं होती थी। मदर अर्थ नाम की कोई कंसेप्ट नहीं थी, जो भारत में है आज सब लोग स्वीकार करने लगे। तो ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आकर बौद्धिक दास्यता को छोड़कर एक स्वाधीन देश के नागरिक, स्वतंत्र देश के नागरिक, इस प्रकार से सोचने की दिशा हम तय करेंगे तो आने वाले 25 साल में हम ये चित्र बदल सकते हैं। तो फिर कल्चर और इकोनॉमी की बात कोई करता है, आर्ट और इकोनॉमी की बात कोई करता है, तो उसमें सेंस ऐसा लगेगा। आज लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कैसी बात हो सकती है, उसके आधार पर क्या इकोनॉमी बढ़ेगी? क्योंकि सोचने के तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता।